بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NAN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ضلع لودھرا کے دیگر قبرستانوں کی طرح امیرپور سادات کے مرکزی قبرستان میں بھی عوام الناس کی جانب سے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور قبروں کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری۔ ٹنڈولہ ہیار میں محرم الحرام کو مزید سیکیور کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نسیم سیتو، مینیجر امتیاز چانجیو اور سول ایجنٹ آفاق قریشی کے ہمراہ نیشنل پریس کلب ٹنڈولہ ہیار آمد پر صدر نیشنل پریس کلب آصف رضا خان زادہ اور سینئر صحافی عبدالحمید عباسی اور صحافی نسیم سیتو کا مہمانوں کو سندھ کا تحفہ پیش۔ ناروال میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ گلستان زہرا محلہ خواجہ سے برآمد ہوا۔ ٹنڈولہ ہیار میں مولانا سید رضا نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ واقعہ کرب و بلا امن، بھائی چارے اور اسلام پر مر مٹنے کا درس دیتا ہے۔ پاکستان جن خطرات میں گھرا ہوا ہے، ہمیں باہمی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ سردار رئیس ممتاز حسین چاچڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ خوشاب پولیس کی پریس ریلیز کے مطابق ضلع خوشاب میں یوم عاشوراء کے موقع پر چھوٹے بڑے 65 جلوس نکالے گئے۔ خوشاب محلہ رسول نگر میں ایک شخص زخمی بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کہروڈ پکا نعیم بشیر اور CO کہروڈ پکا محمد ندیم کی بہترین کارکردگی، امام بارگاہوں میں صفائی کے بروقت اور بہترین اقدامات بھی کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی سندھ ضلع ملیر کے سابق جنرل سیکرٹری فرمان علی خان کے خاندان کے 14 شہداء کا سوائم شیر پاؤ کالونی لانڈھی ضلع ملیر میں ادا کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح جڑاوالا میں بھی یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس سنیما چوک سے برآمد ہوا۔ ملک بھر میں دوسرے شہروں کی طرح جڑاوالا میں بھی یوم عاشوراء کے دن لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر قبرستان کی جانب روانہ۔ مسلم لیگ نون کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مائنز آنر چوہدری شجاع الرحمان ٹیپو کا محرم الحرام کے موقع پر پیغام۔ صوبت پور میں 10 محرم الحرام کا ماتمی جلوس حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو عملی طور پر اپنانا چاہیے، چوہدری ناصر ندیم گجر۔ منڈی بہاؤدین میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا، سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری۔ صوبت پور کا ماتمی جلوس مولوی قادر بخش چوک پر پہنچ گیا۔ کشمور میں 10 محرم الحرام یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس پیر فتح شاہ بخاری سے برآمد۔ اور ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی یوم عاشور 10 محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ دیگر شہروں کی طرح صادق آباد میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہائے ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے حفصہ طاہر۔ میں بتانے جا رہی ہوں کہ چینل NAN24 پر لے کر آ رہی ہوں میں ایک پروگرام جس کا نام ہے نوا پواڑا، مطلب کہ مسئلے مسائل موج مستی فن دھمال اور بہت کچھ ہے اس پروگرام میں، تو دیکھنا مت بھولیے گا NAN24 نیوز پر
ہر ہفتے کی شام 7:05 پہ نواب پواڑا دیکھیے گا میرے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی پائل چودھری۔ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیا پیغام۔ NAN 24 چینل پہ آ رہا ہے نیا پروگرام نواں پواڑا، دیکھنا نہ بھولنا۔ ہائی گائز، السلام علیکم، میں ہوں جی آپ کا اپنا نواز انجم، اور جناب NAN نیوز پر ایک نیا پروگرام آ رہا ہے، ایک نواں پواڑا۔ بڑا ہی مزاحیہ پروگرام ہے، ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم تے وعلیکم السلام، آپ کا میں خادم تے لکی ڈیئر میرا نام۔ پیاریو دلاں دے نظارے ہو گین کو آ رہے ہو تے پھر پوا رہے ہو NAN 24 چینل جہدے دے پروگرام آ رہا ہے نواں پواڑا۔ تانوں پتہ ہر گھر دے وچ پواڑا، اج کل پواڑا ہی چل رہا ہے، جدھر بھی جاؤ پواڑا ہی ہے۔ تے تانوں نویں ستاریاں دے نال، نویں سٹاراں دے نال اچھی کامیڈی، اچھا پیار اور اچھے تانوں چیزاں ویکھن نوں ملن گیاں۔ تے تسی لہٰذا کہ اس ویر نوں بھی خادم نوں بھی یہ چینل دے تے ویکھو گے تسی انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک رحمت کرے، مولا پنجر پاک دے صدقے۔ تے چینل والوں بھی میرے والوں مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں یعنی کہ کامیاب کرے۔ انہوں سبسکرائب بھی کرو، شیئر بھی کرو تے لائک بھی کرو۔ لکی ڈیئر تہاڈا پیارا، تھینک یو، بڑی مہربانی۔ بلیٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے لودھرا سے، جہاں امیرپور سادات کے مرکزی قبرستان میں عوام الناس کی جانب سے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمیں لودھرا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر فہد بخاری۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے گا، اس وقت کیا مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں؟ جی بالکل، ضلع لودھرا کے دیگر قبرستانوں کی طرح امیرپور سادات کے مقامی قبرستان سید شاہ رسول قانی بخاری میں عوام الناس کی طرف سے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور قبروں کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری ہے۔ قبروں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیا نام ہے تھوڑا؟ اللہ رکھا۔ اے تو قبر دی مرمت کر کے نہیں قبر ہے؟ یہ میرے والد صاحب دی والدہ دی۔ وہ والد صاحب دی والدہ دی قبر ہے، کتنا عرصہ تھی گئے لوگ فوت ہوئے کو؟ والدہ 1400 تھی ہے، والد 1900 تھے۔ باقی سارے آپ دا قبر ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایسا قبر دی دیکھ بھال مرمت کرنے ہر سال کرنے ہوندے ہیں؟ سر ہر سال کرنے ہیں۔ کتھوں ہے تو کیا رہائش ہے تہاڈی؟ امیرپور سادات، یعنی تہاڈا مقامی رہائش ہے؟ چلو ٹھیک ہے سر، بہت مہربانی۔ مہربانی سر۔ امیرپور سادات کا یہ قبرستان تقریباً 600 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، جہاں امیرپور سادات کے مقامی افراد کے ساتھ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آ رہے ہیں۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہر سال 1 محرم الحرام سے شروع ہو کر 10 محرم الحرام تک جاری رہتا ہے۔ سادات کے مقامی قبرستان میں ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے تہاڈا؟ زوار حسین شاہ۔ اچھا زوار بھائی، کتوں آئے ہو تساں؟ باولپور تو ہیں۔ بھاولپور کافی دور ہے امیرپور سادات تو۔ اچھا، یہ کینی قبر ہے؟ کنے کمرے والد صاحب ہے، پورا خاندان ہے۔ پورا خاندان تہاڈا مقامی قبرستان ہی ہے؟ اچھا، یہ قبرستان کتنے عرصے بعد تہاڈا چکر لگدا ہوندا ہے؟ قبر دی دیکھ بھال کیتے، فاتحہ خوانی کیتے؟ تقریباً مہینہ 15 دن بعد چکر لگوے نہیں پاسے۔ تے محرم الحرام وچ کیا شیڈول ہوندا ہے؟ محرم تے لازمن آنے ہیں۔ محرم الحرام تو لازمی آندے ہیں۔ والد صاحب دی، والدہ صاحب دی، یعنی تہاڈے خاندانی جڑا آبائی قبرستان تہاڈا ہی ہے؟ تقریباً جیسے ساڈا ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی۔ عوام اس دنیا سے رحلت فرما جانے والے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، قبروں کی لپائی اور نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان میں لنگر اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی سبیل کا وسیع انتظام بھی ہوتا ہے۔ قبرستان میں لوگوں کی آمد کا یہ سلسلہ 10 محرم الحرام تک جاری رہے گا۔ لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے۔ جی بالکل، ضلع لودھرا کے دیگر قبرستانوں کی طرح یہاں امیرپور سادات کے مقامی قبرستان میں بھی 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک لوگوں کا ایک تانتا سا بنا رہتا ہے۔ لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد اپنے پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال، ان پہ فاتحہ خوانی کرنا وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ قبرستان میں سبیل کا اور لنگر کا بھی ایک وسیع انتظام ہوتا ہے، جو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم عباس بخاری کے ساتھ فہد بخاری، NAN 24 نیوز، امیرپور سادات۔ جی فہد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ ناظرین، ٹنڈولا ہیار میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے مزید سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے، مجالس اور قافلوں میں آنے والوں کی بھی چیکنگ کی گئی۔ اس موقع پر SSP ٹنڈولا ہیار رخسار احمد کھاوڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں 1 محرم الحرام اور بالخصوص 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو سیکیور اور کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کی گئیں۔ SSP کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ضلع بھر
भर में 1800 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। नेशनल प्रेस क्लब सिंध टंडोला हयार के सदर को सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया गया। नसीम सेहतू, मैनेजर इम्तियाज चांडियो और सिविल एजेंट अफाक कुरैशी के हमरा नेशनल प्रेस क्लब टंडोला हयार आमद पर सदर नेशनल प्रेस क्लब आसिफ रजा खान ज़ादा और सीनियर सहाफी अब्दुल हमीद अब्बासी और सहाफी नसीम सेहतू का मेहमानों को सिंध का तोहफा पेश करने की तकरीब। नारोवाल में भी 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से इमाम हुसैन का मातमी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा मोहल्ला ख्वाजका से बरामद हुआ। जुलूस में ज़दारों की सीना को भी नौहाखानी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस में ताजिया और अलम की ज़ियारत भी करवाई गई। जुलूस के रास्तों में सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन था। नामवर ज़ाकिरीन ने शोहदा करबला पर रोशनी डाली। वाक़या करबला अमन और भाईचारे और इस्लाम पर मरमिटने का दर्स देता है। मौलाना सैयद रजा नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से टंडोला हयार में माह मुहर्रम में खिताबत के फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। वाक़या करबला क्या है? दरअसल वाक़या करबला अमन, भाईचारे और इस्लाम पर मरमिटने का दर्स देता है। दुश्मन के निर्गे में भी हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र, हिम्मत, अमन, भाईचारे और इस्लाम का दामन ना छोड़ा। इन्हीं की कुर्बानियों के सबब आज इस्लाम जिंदा है। नाज़रीन, आपको खुशाब से अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान जिन खतरात में घिरा हुआ है इन्हें सख्त इत्तेहाद की जरूरत है। सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़, ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम का पैगाम जुल्म के खिलाफ डट जाना है। हमें भी आपस में वहदत, यगांगत, यकजहती और अखवत व भाईचारे, सब्र और बर्दाश्त की फिजा को कायम करना चाहिए और तमाम ममालिक के लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इस वक्त हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिन खतरात से घिरा हुआ है, हमें बाअहमी इत्तेहाद की जरूरत है। खुशाब की पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक खुशाब में छोटे बड़े 65 जुलूस निकाले गए, जिनमें ए कैटेगरी के 5, बी कैटेगरी के 6 और सी कैटेगरी के 54 जुलूस शामिल थे। इस मौका पर 38 मजालिस जो कि सी कैटेगरी 38 पर मुश्तमिल थी। जुलूस और मजालिस की हिफाजत के लिए पुलिस के 1075 एहलकार तैनात भी किए गए थे। एलएच की 9 टीमें तश्कील दी गई थी, जबकि 79 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए थे। डीपीओ खुशाब मोहम्मद नवीद की हिदायत के मुताबिक जिला भर में जुलूस और मजालिस में शिरकत करने वाले शुरका की हिफाजत को भी यकीनी बनाया गया। खुशाब के मोहल्ला रसूल नगर में एक शख्स जख्मी और बेहोशी की हालत में पाया गया। मोहल्ला रसूल नगर में तारिक मसूद नामी शख्स जख्मी हालत में बेहोशी में पाया गया। रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तारिक मसूद रसूलाबाद का रिहायशी बताया जाता है। एसी कहरोड पक्का और सीओ कहरोड पक्का के मुहर्रम उल हराम के हवाले से बेहतरीन इंतजामात। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड पक्का नईम बशीर और सीओ कहरोड पक्का मोहम्मद नदीम की जाती काविशों की वजह से कहरोड पक्का की दीगर इमाम बारगाहों की तरह अमीरपुर सदात की इमाम बारगाह ऐवान सुल्तान करबला में भी सफाई के बेहतरीन इक़दाम किए गए थे। इमाम बारगाह और इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सफाई के साथ साथ टूट फूट का शिकार सड़कों की भी दोबारा मरम्मत की गई थी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का नईम बशीर और सीओ करोड़ पक्का मोहम्मद नदीम की जाती काविशों की वजह से करोड़ पक्का की दीगर इमाम बारगाहों की तरह अमीरपुर सदात की इमाम बारगाह ईवान सुल्तान करबला में सफाई के बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। इमाम बारगाह और इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सफाई के साथ टूट फूट का शिकार सड़कों की भी दोबारा मुरम्मत कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का की बरवक्त और बेहतरीन कारकर्दगी पर अहले इलाका के साथ जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग साउथ पंजाब सैयद जुल्फकार अली शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का का शुक्रिया अदा किया। जी फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। फरमान अली खान के खानदान के 14 शोहदा का सोएम जिला मलीर में अदा कर दिया गया। इस हवाले से हमें कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा काशिफ अली। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, अवामी नेशनल पार्टी सिंध जिला मलीर के साबिक जनरल सेक्रेटरी फरमान अली खान के खानदान के 14 का सोएम शेरपाव कॉलोनी लांडी जिला मलीर में अदा किया गया। सोएम में ANP सिंध के सदर शाही सईद और मुशावरती कौंसिल के दीगर मेंबरान समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा समेत आवाम के कसीर तादाद शिरकत की सोएम, जो कि ताज़ीती रेफरेंस में तब्दील हो गया था। खताब में ANP जिला मलीर के सदर कचकोल खान ने सिंध हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों से कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
बसूरत दीगर हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़िला मलीर मोहम्मद इस्लाम ने सदर ज़िला मलीर के मुतालबे की मुकम्मल तायद की और कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके सदर ANP शाही सैयद MNA आगा रफ़ीउल्लाह अहले सुन्नत जमात के और इंजन फारूकी जमीयत उलमा के इस्लाम एहसानुल्लाह तकरवी समेत मुख्तलिफ सियासी जमायती शख्सियात समेत ANP सिंध की तमाम काबीना तमाम ज़िला सदूर जनरल सेक्रेटरीज और ज़िला मलीर की काबीना मजलिस अमला वार्ड सदूर सेक्रेटरी समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे। काशिफ अली NN 24 न्यूज़ कराची। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया पेश करने का। और नाज़रीन, जड़ावाला में भी यौम आशूरा के हवाले से मरकजी जुलूस सनमा चौक से बरामद हुआ, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के मसाब बयान करने के साथ साथ मातम जंजीर जनी भी की गई और जुलूस की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्त निगरानी भी जारी। जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे भी नस्ब किए गए थे और जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल जड़ावाला में इख्तिताम पजीर हुआ। जड़ावाला में भी यौम आशूरा के दिन के हवाले से प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की गई। लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगी और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। मुस्लिम लीग नून के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का मुहर्रम उल हराम के मौका पर पैगाम। चौधरी शजाउर रहमान टीपू ने मुहर्रम उल हराम के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि करबला के मैदान में नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने खानदान समेत जो अजीम कुर्बानी दी, हमें हर पहलू से सब्र बर्दाश्त का दर्स देती है। हक के लिए जदोजहद जारी रखना और कुर्बानियां देना हुसैनी तर्ज अमल है। मुआशरा के तमाम मकातबे फिक्र और तबकात को चाहिए कि हुसैनियत के पैरोकार बने और मुआशरा को अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए अपने अमली किरदार और दीनी और कौमी जिम्मेदारी से शरपसंद अनासर की सरकूबी के लिए इक़दाम उठाएं। सोबतपुर में भी 10 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जिला भर के छोटे बड़े जुलूस इस मरकजी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के अज़ादार सिनाकुबी भी करते रहे और मौलवी कादिर बख्श चौक की जानिब बढ़ते रहे। अज़ादार नमाज जोहर अदा करने के बाद सिनाकुबी के साथ जंजीर जनी भी करते गए, जिसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सैयद मोहद्दीन शाह पर पहुंच गया, जहां पर जुलूस के अज़ादार के लिए लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को अमली तौर पर अपनाना चाहिए। नासिर नदीम गुजर। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार PP 83 चौधरी नासिर नदीम गुजर ने मुहर्रम उल हराम के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार को अमली तौर पर अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन ने इक़ामत दीन के लिए वक्त के यजीद का सामना किया और तादाद में कम होने के बावजूद बेखतर होकर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अहलो अयाल समेत कुर्बान हो गए। हमें भी नज़रिया हुसैनी पर चलते हुए यजीदी निज़ाम के खिलाफ इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए वोट की ताकत को इस्तेमाल करना होगा। मंडी बहाउद्दीन में भी यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद। जुलूस के रास्तों को खारदार तारें, कनातें और लगाकर मुसल्लह पुलिस की तैनात ड्रोन कैमरों से जुलूस की निगरानी की गई। जिला में यौम आशूर के 65 जुलूस निकाले गए। यौम आशूर के मौका पर अमन अमान बहाल रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। DPO साजिद हुसैन खोखर और DC तारिक अली बसरा जुलूस के हमरा मौजूद थे। सोबतपुर का मातमी जुलूस मौलवी कादिर बख्श चौक पर पहुंच गया, जहां जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की और इज़ादारों ने नोहा ख्वानी पर शदीद सिनाकोबी और जंजीर सनी की, जिसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गया। कश्मीर में भी 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस पीर फतह शाह बुखारी से बरामद हुआ। मरकजी मातमी जुलूस में सैकड़ों इज़ादार हुसैन शरीक, हर तरफ या हुसैन की सदाएं। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के नौजवान तैनात। जुलूस की गुजरगाहों के रास्तों को सिक्योरिटी के पेश नजर टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते पर सबीलने और लंगर का भी एहतमाम किया गया। और जैकबाबाद में भी 10 मुहर्रम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और लंगर का भी एहतमाम किया गया। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जैकबाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल बाकी। जी अब्दुल बाकी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? स्काउट्स ओपन ग्रुप जैकबाबाद के कैंप है, मेडिकल कैंप। ये सन 1983 से लेके हम कैंप लगा रहे हैं और ये हर साल अज़ादारों की खिदमत के लिए होती है। इस दफ़ा जो है SOPs के तहत जो है बहुत जो है सख्ती की गई है। इस वजह से काफ़ी दोस्त जो हैं वो आएंगे, लेकिन जो है मटेरियल जो हमको मिलता है
वो हर दफ़े यही कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, यहाँ पे सारी रश होती है। आप देख रहे हैं पीर बुखारी कैंप है। जैसा कि मुल्क भर की तरह जैकाबाद में भी 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। तमाम रास्तों और चौराहों पर खारदार तारों को सील किया गया था और यहाँ पर अज़ादारों की जानिब से सीनागोरी की जा रही है और उन्हों का कहना था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं और हम 10 मुहर्रम अकीदत व एहतराम से मनाते जाएंगे हमेशा। अब्दुल बाकी कैमरामैन टीम के साथ NN24 न्यूज़ HD जैकब आबाद। जी अब्दुल बाकी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको सादिकाबाद से अपडेट करते चलें, जहां पर सादिकाबाद में दीगर शहरों की तरह 10 मुहर्रम उल हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सादिकाबाद से हमारे रिपोर्टर सुहेल नदीम। जी सुहेल नदीम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी यौम अशूर का दिन नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह के बारे में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि हज़ारों की तादाद में हज़ारों मौजूद हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के बारे में भी बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ एक अज़ादार मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम यौम अशूरा का जुलूस इमाम बारगाह फतह कटा से होता हुआ अपने रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह इख्तिराम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, DPO साहब रहीमिया खान और ASP सादकाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद, SHO सिटी नवीद नवाज वाला साहब के हाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रास्तों को खाजदार तारे लगाकर ब्लॉक किया गया था। इनकी तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की गई है और रेंजर के दस्ते भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अभी 3 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह से मेरे दादा अबू के घर से लसंसी जुलूस जुलजना का बरामद होगा, जो अपने रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह इख्तिराम पजीर होगा। उसके बाद शाम गरीबा की मजलिस होगी। इंशाअल्लाह 7 सवा 7 बजे तक मरकज़ी इमाम बारगाह सादकाबाद में हर किस्म के प्रोग्राम बाखैरियत इख्तिताम पजीर होंगे। भाई अभी बता रहे थे कि तमाम जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह में पहुँच चुके हैं। सादकाबाद के तमाम इंतज़ामिया ने भरपूर ताउन किया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाम 7 बजे तक मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल नदीम, NN24 न्यूज़ सादकाबाद। जी सुहेल नदीम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।